Hello students, I am Abhishek and I will try to teach you the portion of political science. Okay, so before we start, I would like to tell that I would speak in three different languages partially. Okay, means somewhat in English, थोड़ा बहुत गुजराती में और थोड़ा बहुत हिंदी में. Okay, so now we have to start your 8th chapter, which is known as the title of 8th chapter, which is framing of constitution. Okay, framing of constitution means how the constitution was framed. Now, initially I would like to tell that if you are seeing this video, then you must open the textbook which is provided by your school teachers or which is used by the school teachers. Okay, because I am using that notes only. That is, अगर आपके पास आपकी स्कूल की कोई बुक हो, टेक्स्ट बुक हो, पाठ्य पुस्तक हो, ठीक है, so you have to keep open that. आपको वो टेक्स्ट बुक खुली रख के ये वीडियो देखना है, उससे बहुत सारे फायदे हैं. दैट इज पहली बात, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा. दूसरी बात, ये जो पॉलिटी है, ठीक है, आई वुड लाइक टू टेल दैट सी द पॉलिटी सब्जेक्ट और द पॉलिटिकल साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉयर्स. ओके, so the subject of lawyers is very hard, means the language is very hard. So what I will try that, see, whatever you want to understand, I will try to make you understand, and you have to refer the textbook for your notes. Okay, मैं यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए ही आ रहा हूँ, ठीक है. आपको मैं जितना भी बोलूँगा, ठीक है, आपको जो आपकी बुक में है वो देखना है. दैट इज इट रिटन इन योर बुक और नॉट, एंड इफ इट इज नॉट रिटन देन इट इज योर ड्यूटी टू राइट दोज सेंटेंसेस. ओके, टू राइट दोज सेंटेंसेस. नाउ दैट वाज वन रीजन. द सेकेंड रीजन इज it will give you confidence. ठीक है, the language of the book is very much hard and very much tough. So I am here only to make you understand. I am again repeating it. Okay, so I hope you have understand my situation. Now, without any delay, let's begin with our 8th chapter. See, what initially it's about the constitution. So I would like to tell that what is constitution. Can anyone say that? If you want to say that what is constitution, then in simple language, आसान भाषा में मैं उसको ऐसे कहता हूँ कि भाई constitution is nothing but a book. Okay, it's a book which is full of rules, regulations. Okay, which is abide by citizen of India. City. Okay, 1 minute. Sorry for interruption. There is one technical glitch, so I am sorting out that. One minute. Okay, so sorry for delay. I am back now. I would like to tell that what is the constitution. Constitution is a book in which rules and regulations are mentioned, which is abide by citizen of India. Okay,
this is my language. You can find some other language in book, some other definition in book. So we will try to see his definition also. Let's see that. Okay, see. Now here what is written that constitution means any systematic collection of rules designed by government and which is designed to govern country regime. Means it is designed to govern the particular territory. Okay, it is called as constitution. तो मैंने जो बोला वही है, लेकिन मैंने जो बोला वो थोड़ा आसान भाषा में था. ओके, so 1 minute, I would like to rub this page. Now see, you will ask that, sir, what is the importance of this constitution? See, the constitution is nothing but force. Okay, it is nothing but a force which is citizen of India, all the citizens in limit. ठीक है. For example, you have right to freedom, you have right to speech. ठीक है, आपके पास बोलने की राइट है, आपके पास बोलने का अधिकार है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोले. ठीक है, isn't it? I hope you are getting that. So constitution is a force which keeps the citizen of India in limit. Now see, the constitution is a basic and most important document which regulates the country. Okay, now the laws of country are based on our culture. Okay, it's very simple that the laws of our country is there depend and is also partially governed by the culture of our territory. Now let's see what is written in the notes. See, here it is written that the constitution is a basic and most important document, as I have said previously. Okay, as I have said previously, it is basic and most important document. I hope you are trying to see this. Now the law or the constitution, it involves the requirement. ठीक है, constitution involves requirement which is depending upon aspiration, feeling of all the citizens of India. Okay, ठीक है ना. Constitution also involves the requirement which is based on interest as well. Okay, it is based on interest as well. Now that is the reason that constitution is known as live and basic document. ठीक है, आपको मैं अगर आसान भाषा में समझाऊं, ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं, ये पूरा स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है कि as constitution is fully empowered with all the changes which are required by the citizen of India, which is, देखो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या चीज है जो भी हमारे भारतीय वासी को चाहिए, और सभी चीज ऐसा तो नहीं है कि एक बार चाहिए तो दूसरी नहीं चाहिए होगी. Are you getting it? Means all the people have to upgrade their life, so all the needs of the people will be changing. Okay, as their life change, as their feeling will be changing, as their life proceeds, their aspiration, their expectation also proceeds, and their extend means interest also extends. ठीक है, कुछ ना कुछ तो लोगों को चाहिए ही रहता है. So the book which contains all of that and which keeps regulating all of these criteria is also called as constitution. So this constitution, ये जो इतना महत्वपूर्ण जो बुक है, ठीक है, उसको
लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट भी बोला गया है, ठीक है। The constitution will, I want to say my personal opinion that constitution will make you develop. Okay, suppose if you are abiding the rules, then it is for you only, ठीक है। अपना एक ट्रैफिक एक रूल है, ठीक है, that do not run the car above 80 km/h. That is, there is some defined speed. Now, why it is that? To ensure your safety. Suppose I am abiding the rule, then I will only be safe ना, ठीक है। अगर मैं ये जो रूल है कार सेफ्टी वाला, अगर मैं वो थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है, तो उससे तो मैं ही सेफ होऊंगा ना। तो अगर मैं सेफ हुआ तो मेरा डेवलपमेंट हुआ, यस। सो इज इट डेवलपमेंट? यस, इट इज डेवलपमेंट। सो व्हाट आई वांट टू से इज कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जो हमारा रूल बुक है, ठीक है, if we are following that, our development is defined. Now we have seen what is constitution and what is the importance of constitution. Now, how was the constitution framed? The last viceroy, who was the last viceroy? Last viceroy, sorry for the partial handwriting, yes, last viceroy was Lord Mountbatten, okay, Lord Mountbatten. So he had a plan that there would be an assembly in which all people would sit and make a rules for a country, because अभी तो ब्रिटिशर्स जा रहे थे, ठीक है, एट लास्ट, तो वो अपने रूल्स तो यहाँ पे नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि हमारा देश तो आजाद हो रखा था। सो they have planned to form a constituent assembly which will make a constitution, which will make all the rules, okay, which will make all the rules, okay. So what I wanted to try to tell you that Mountbatten proposed a plan that there would be some people which would get together in a hall which is known as assembly, okay, which is known as constituent assembly, okay, assembly. Sorry for my bad handwriting, but please bear with this. So, in this constituent assembly, there will be some members who will make a law and who will see that what should be included and what should be not included. Okay. So now let's see what is written in the notes. It is written that on 25th March, I am on this side. Okay. I am here. Let me highlight it. I am here. On 25th March 1946, okay, on 25th March, the duty to cabinet mission of 3 members in okay, so let's try to understand this. On 25th March, there were three people came, and 3 people from cabinet of England, okay, came and told that there would be a constituent assembly, formation of constituent assembly, and that constituent assembly will draft a constitution. Okay, so it was decided that it was also decided that all the members सब religion के आएंगे, means they would be of various religion, various caste, various genders. Okay, so total there were 385 members. Okay, in the constituent assembly there were 385 members. Now what were there? 385 members. उनका काम क्या था? That 385 members would sit in a one place and form a rule which would later be combined and collectively known as constitution. अब उसमें कौन कौन थे? उससे बहुत सारे लोग थे, like
जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामांत, then KM Munshi, Krishna Swami Iyer, Baldev Singh. Okay, now the main important point is that if there is one assembly, okay, sorry, yes, see, if there is assembly, there is one president, okay. If there is assembly, there is a president. So, who was the president of Constituent Assembly? There will be one question which is asked in NTSC, that who was the president of the Constituent Assembly? That is Dr. Rajendra Prasad. Okay, who was that? Dr. Rajendra Prasad. Rajendra Prasad. He was the president of the Constituent Assembly, and the constitution is drafted by a final committee. ठीक है, सब लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, बट एट लास्ट सब लोगों ने एक ऐसा होता है ना कि देखो हम पेपर लिखते हैं, ठीक है, हमारा देख मतलब हमारी एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम के बाद हमने मतलब एग्जाम के अंदर हमने पूरा एक पेपर है वो लिख दिया, हमारा जो पेपर था पूरा वो हमने हमारी आंसर शीट में लिख दिया। नाउ जब हमारा काम एक बार ओवर हो जाएगा, ठीक है, एक बार हमारा काम ओवर हो जाएगा, दैट इज वंस आवर पेपर इज रिटन, क्या हम उसको दोबारा चेक करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, वी विल चेक द आंसर शीट 1 or 2 times. Okay, am I wrong? No, I am correct. हम सब एक बार हमारी आंसर शीट चेक करते हैं कि भाई मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। ओके, सो there was a committee who was designed to check that our constitution is written very nice or is there any mistake or not। ठीक है, कमेटी का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, और असेंबली का मतलब क्या होता है? लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। कमेटी में मुश्किल से 12 या 13 लोग आते हैं, बट इन असेंबली देयर वर टोटल 385 मेंबर्स। ओके, ये याद रखना, शायद लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या होता है। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ। टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी का ये काम होता है कि to give a final check on a constitution। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडी हो चुका है, ठीक है, लेकिन सबमिट करने से पहले मैं जैसे एक बार हमारा पेपर देखते हैं, उसी तरीके से जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो क्या करेगी? ड्राफ्टिंग कमेटी है वो एक बार लास्ट में पेपर देखेगी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन देखेगी, अगर कोई उसमें मिस्टेक है या नहीं है। सो अगर ड्राफ्टिंग कमेटी है तो उसका भी कोई हेड तो होगा ही, ठीक है। इफ देयर इज ड्राफ्टिंग कमेटी, इट इज श्योर दैट देयर वुड बी सम हेड, मीन्स उसका कोई बड़ा मीन्स मैं क्या बोलूँ अभी आपको, एक ऐसा तो होगा कि जैसे देखो सर, एक क्लास में एक मॉनिटर होता है, ठीक है, जो पूरा एक रेगुलेट करता है, उसी तरीके से एक कमेटी का एक मॉनिटर होता है जिसको हम कहते हैं हेड। वो देखता है कि भाई सब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। नाउ डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, सॉरी फॉर माय गुजराती हैंडराइटिंग, बी आर आम्बेडकर, sorry, yes, so Dr. B.R. Ambedkar was the head of drafting committee, okay, he was head of drafting committee. Now I have told you earlier that Rajendra Prasad was president of which assembly? Hence your answer will be Rajendra Prasad was the president of
Constituent Assembly. Okay, sorry for my typing mistake. You can see in your textbook also. That's why I have told that you have to keep open the textbook. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly. Okay, so keep these both names in your mind because they are of most important. ओके, बहुत 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 इम्पोर्टेंट ये दो नाम. ठीक है, अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ली, मतलब बनाने की तैयारी तो कर ली. ठीक है, तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार होगा. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाने के लिए 2 साल, 2 years 11 months और 17 दिन लगे थे. ठीक है, मीन्स वी वर रिक्वायर्ड 2 years plus 11 months plus 17 days to make and to complete whole of the constitution. ओके, और इसमें टोटल कितने सेशन हुए थे? That is 166 सेशंस हुए थे. सेशन मतलब क्या होता है? जब लोग आपस में बैठकर बात करते हैं. ठीक है, That is, तो देखो 2 years अराउंड, देखो अप्रोक्सीमेटली मैं 2 year ले लेता हूँ. ठीक है, तो हमने 2 साल, मतलब 2 साल नहीं, एज इट वाज 2 years and 11 months, let we take approximately 3 years. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 385 जो लोग थे, ठीक है, 385 people who were there to make the constitution, तो 385 जो people थे वो 3 साल में 166 टाइम्स एक जगह पर इकट्ठे हुए थे. क्या करने के लिए? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. ठीक है, आप ये एक बार नोट कर लेना. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू प्रीवियस स्लाइड एंड सी दैट व्हाट इज देयर. See, as I have told you that what I am saying is you can find in your textbook. See, it is written that the Constituent Assembly met for 666 sessions. Okay, sorry, 166 sessions, having the period of 2 years, 11 months and 17 days. तो ये एक बार नोट कर लेना. ठीक है, नाउ आपको पता होगा. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज फुल ऑफ रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन इज फुल ऑफ रूल्स. उसमें क्या होता है? रूल्स होता है. और रूल्स को हम रूल्स नहीं कहते, रूल्स को हम कहते हैं आर्टिकल्स. ओके, रूल्स को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स. दैट इज, अगर मैं अगेन में लिखता हूँ तो रूल्स को हम कहते हैं आर्टिकल्स. आई होप आप समझे होंगे. तो टोटल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 295 आर्टिकल्स है, मतलब 295 रूल्स है. ठीक है, और 295 आर्टिकल्स 8 पार्ट में डिवाइडेड है. बट उसके बाद थोड़ा चेंजेस होते हैं और अभी हमारे पास कितने हैं आर्टिकल्स? अभी हमारे पास टोटल है 395 आर्टिकल्स. और वो हमारे जो आर्टिकल्स है वो 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, नाउ एक और इम्पोर्टेंट सूचना है. क्या है वो? दैट इज on 26 November 1949 the Constituent Assembly passed the Constitution Assembly passed the Constitution. That is 26 November 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक हमारी रूल बुक है, ठीक है, वो तैयार हो गई थी. ठीक है, लेकिन हमने उसको
26 जनवरी को अडॉप्ट करी थी। याद रखना कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गई थी, बट हमने उसको अडॉप्ट कब किया था? दैट इज 26 जनवरी 1950, दैट इज उसके थोड़े दिन बाद। ओके, तो ये भी आप याद रख लेना। बस हमने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो अडॉप्ट किया था, तो उस दिन को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। ओके, और हमारा एक नेशनल एम्ब्लेम भी है, हैविंग 4 लायन एंड रिटन दैट सत्यमेव जयते। ओके, नाउ दैट इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम थोड़ा पाठ पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है। ओके, तो देखो, अगर आप आपकी बुक खोलोगे, ओके, तो आपकी बुक में आप सबसे पहले क्या चीज पाओगे? दैट देयर वुड बी एन इंडेक्स। ओके, देयर वुड बी एन इंडेक्स व्हिच टेक केयर ऑफ ऑल द बुक्स, सॉरी व्हिच टेक केयर ऑफ ऑल द कंटेंट ऑफ द बुक। ठीक है, दैट इज, देखो, अगर मैं नया स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मेरे को एक बुक लेनी है, ओके, इफ आई एम न्यू स्टूडेंट एंड आई वांट टू रीड अ बुक and I don't know what is mentioned in the book, then what I will do, I will see what is written in the index, because index gives us rough idea. Okay, मेरे पास पूरा टाइम नहीं है देखने के लिए, but I want to see the what is written in the book. So मैं क्या करूँगा, मैं बारी बारी से इंडेक्स का पकड़ लूँगा और मैं देख लूँगा कि भाई क्या है हमारा बुक में। So in same way कॉन्स्टिट्यूशन हैव इंडेक्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट के इंडेक्स को हम इंडेक्स नहीं कहते। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के इंडेक्स को हम इंडेक्स नहीं कहते, क्या कहते हैं हम? प्रीएम्बल। ओके, प्रीएम्बल। सो क्या है प्रीएम्बल? दैट इज, प्रीएम्बल इज एन इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल जो हमारा है, ठीक है, प्रीएम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है, उससे हमें क्या पता चलता है? दैट इज व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज मेंशन है। ठीक है, ओके, और हमारा जैसे हर बुक अपने इंडेक्स से ही स्टार्ट होती है, ठीक है, जैसे हर बुक अपने इंडेक्स से स्टार्ट होती है, वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। ओके, तो आप ये बात भी याद रख लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी आपकी जो बुक है, ठीक है, उसमें जो दिया हुआ है वो थोड़ा पढ़ते हैं। That is, preamble is an important part of the constitution. मैंने जैसे आपको बोला था, जैसे कि हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट बिगिंस विद प्रीएम्बल। ठीक है, नाउ जो प्रीएम्बल है, ठीक है, प्रीएम्बल में सब चीज मेंशन है किसकी? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हम जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल उसको हम कहते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो प्रीएम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको प्रीएम्बल लिखना है तो आप आपकी एसएस की जो बुक है, ठीक है, वहां पे स्टार्टिंग में होगा। ओके, तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो, प्रीएम्बल में ये लिखा है कि वी मतलब द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव solemnly
resolved the Constitution of India. That is, हम भारत के नागरिक हैं, उन लोगों ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूर्ण तरीके से बना लिया है, ठीक है। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूर्ण तरीके से बना हुआ है, ठीक है, वो है जब कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवेरियन, मतलब आत्मनिर्भर। मतलब ये स्पेलिंग को मत देखना, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। सोवेरियन, सोशलिस्ट। आप एक काम करो, आप एक बुक लिखो, सॉरी आप एक बुक में ये सब स्पेलिंग है उसको लिखो, ठीक है। सोवेरियन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, बाद में सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। ओके, आपको अगर मैं कहना चाहूँ तो ये आसान भाषा में क्या कहता है, दैट इज जो हमारे भारत के वासी है, जो हमारे नागरिक है, उन लोगों ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने जो संविधान है, उनको पूर्ण तरीके से अपने पर अपना लिया है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोवेरियन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ठीक है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल जस्टिस देता है। इक्वल जस्टिस मतलब सबको एक समान न्याय मिलता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसने रूल तोड़ा है और वो पैसे वाला है तो उसका अलग चालान निकलेगा और जो बिना पैसे वाला है उसका कम चालान, ठीक है। तो सबको जस्टिस इक्वल मिलती है, ठीक है। फिर सबको लिबर्टी भी इक्वल मिलती है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, मतलब आप कितने फ्री हो, ठीक है। फिर सबको इक्वालिटी भी मिलती है, वो भी इक्वल, ओके। एंड फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ ए इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा, ठीक है। अगर मैं गुजराती में लिखूं तो उसका जो कन्वर्जन होता है वो होता है भाईचारो, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारो, ठीक। हमारे जो पूरा भारत का देश है, ठीक है, उसमें जो नागरिक है उसके बीच में भाईचारा रहना चाहिए, ठीक है। और हमेशा रहता भी है, क्योंकि हम हर साल सबके त्योहार एंजॉय करते हैं, सब कुछ भूलकर हम सबके त्योहार साथ में एंजॉय करते हैं, ओके। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार आप क्या करना, आप जो आपका प्रीएम्बल है वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है।